السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کے خلاف مبینہ بیرونی سازش کے بیانیے میں شدت اور فوج کی جانب سے اس کی تردید کے باوجود یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے بقول ڈی جی آئی ایس پی آر صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا فیصلہ کرانا ہے تو چیف جسٹس سے کروائیں۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی عمران خان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا اور مقامی ٹی وی چینل ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں سازش کا لفظ شامل نہیں تھا اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی سازش سے متعلق شرکاء کو دی گئی بریفنگ ذاتی رائے نہیں تھی بلکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر معلومات تھیں۔ پاکستان میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں لگ بھگ 24 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 1 جولائی سن 2021 سے بدھ تک انٹر بینک میں امریکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر تقریباً 50 روپے گر چکی ہے، جو ملکی کرنسی میں لگ بھگ 30% کمی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں تاریخی کمی کی مقامی وجوہات کے ساتھ ساتھ بعض عالمی وجوہات بھی ہیں، جن میں عالمی مارکیٹ میں شرح سود اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ قابل ذکر ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے طالبان حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم ایک بنیادی انسانی حق ہے جسے طالبان افغانستان کے ڈی فیکٹو حکام کے طور پر برقرار رکھنے کے پابند ہیں۔ طالبان کی جانب سے اس وقت جن پالیسیوں پر عمل کیا جا رہا ہے وہ امتیازی، غیر منصفانہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، یہ کہنا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا۔ یو این ایچ سی آر کی ڈپٹی چیف کیلی کلیمنٹس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ سب کو انسانی حقوق، وقار اور شمولیت کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی زندگی کی انتہائی ضروری اشیاء باقی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لاکھوں افغانوں کو امید دلائیں جو افغانستان کا مستقبل استوار کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں، جرمن چانسلر اولف شولز اور اطالوی وزیر اعظم ماریو دریگی آج جمعرات کو کیف پہنچے، جہاں روس کے حملے کو روکنے کے لیے یوکرین کی حمایت کا مظاہرہ کیا گیا۔ میکروں نے کہا کہ یہ ایک اہم لمحہ ہے، یہ اتحاد کا پیغام ہے جو ہم یوکرینیوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب یورپی کمیشن اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا یوکرین کو یورپی یونین کی رکنیت کے لیے امیدوار کا درجہ دینے کی سفارش کی جائے یا نہیں۔ کیف میں میکروں، شولز اور ڈریگی کی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات متوقع ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید $1 ارب کی فوجی امداد بھیج رہا ہے، جس کا مقصد یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس میں روس کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے یوکرین پر روسی حملے کے بعد اب تک دی جانے والی یہ تازہ ترین امداد ہتھیاروں اور آلات کی 12ویں اور سب سے بڑی قسط ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کو دی جانے والی امداد میں $35 کروڑ کا ساز و سامان بھی شامل ہے جو براہ راست امریکی فوج دے گی۔ جان کربی کے مطابق امریکہ نے 24 فروری کو یوکرین پر روسی حملے کے آغاز سے لے کر اب تک کیف کو $91 کروڑ سے زیادہ کی انسانی امداد فراہم کی ہے، جس میں صدر بائیڈن کے بدھ کو اعلان کردہ
इजाफी $225 मिलियन भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ब्रसल्स में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को रूस के हमले के खिलाफ अपने दिफा में मदद करने के लिए मज़ीद कुछ करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को मैदान जंग में एक नाजुक लम्हा करार दिया था। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैदान जंग की मौजूदा सूरत हाल का एक संगीन जायजा पेश करते हुए सहाफ़ियों को बताया था कि जंग में यूक्रेन के 300 अफराद रोज़ाना हलाक हो रहे हैं, जिनमें 100 फौजी शामिल होते हैं, जबकि 100 से 300 के दरमियान ज़ख्मी होते हैं। जनरल मिली ने रूस के खिलाफ जंग को यूक्रेन के वजूद के लिए अहम करार दिया था और कहा था कि यूक्रेनी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका की नायब सदर कामला हैरिस ऑनलाइन हिरासा करने और बदसलूकी से निमटने के लिए वक्फ एक टास्क फोर्स का आगाज कर रही हैं। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड और सर्जन जनरल विवेक मूर्ति आज जुमेरात को इस ऐलान के मौके पर मौजूद होंगे। इसके अलावा सेलोइन स्टेफेंस भी मौजूद होंगे, जो एक स्याफाम अमरीकी टेनिस खिलाड़ी हैं और जिन्हें एक मैच हारने के बाद नस्ल परस्ताना बदसलूकी का सामना करना पड़ा था। बाइडन इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों का कहना है कि तवक्को है कि टास्क फोर्स 180 रोज में सिफारिशात जारी करेगी। ये नई कोशिश एक ऐसे वक्त पर की जा रही है जब टेक्सास और न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर शूटिंग के वाक़यात हुए हैं और जो ऑनलाइन बदसलूकी और नस्ल परस्ताना तबसरों का नतीजा थे। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने बुध के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान रूस के साथ अपने मुल्क के करीबी ताल्लुकात की तस्दीक की। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी और सरकारी नशरियाती इदारे CCTV दोनों के मुताबिक शेन ने अपने रूसी हम मनसब से कहा कि वो यूक्रेन के बहरान के मुज़ाकराती हल की हिमायत करते हैं। क्रेमलिन की तरफ से एक बयान में कहा गया कि चीनी रहनुमा ने रूस के बुनियादी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से उसकी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में किए गए इक़दामात के जवाज़ की जानिब तवज्जो दिलाई। वॉइस ऑफ अमेरिका की मशरक़ी एशिया पैसिफिक डिवीज़न की जानिब से पूछे जाने पर बुध को अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने चीन के मौक़िफ़ पर तनक़ीद की। तर्जुमान ने कहा कि चीन की गैर जानिबदारी के दावे के बावजूद उसके रवैये से वाज़ेह होता है कि वो अब भी रूस के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। तर्जुमान ने कहा कि बीजिंग पूरी दुनिया में रूसी प्रोपेगेंडे की बाज़गश्त जारी रखे हुए है। बैनुल-अक़वामी तंजीमों में मॉस्को की ढाल बन रहा है और यूक्रेन में रूस के मज़ालिम के शवाहिद की तरदीद जारी रखे हुए है। तर्जुमान ने कहा कि दुनिया देख रही है कि कौन सी कौमें आज़ादी, खुद इरादियत और ख़ुद मुख्तारी के बुनियादी उसूलों के लिए खड़ी होती हैं और कौन रूस की पहले से सोची समझी और बिला इश्तियाल जंग की हिमायत करती हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में तनाव के माहौल में अमरीकी महकमा ख़ारजा एक नया इदारा बना रहा है, जिसे चाइना हाउस का नाम दिया गया है। इसका मकसद ये मालूम करना है कि चीन दुनिया भर में क्या कर रहा है। सिंगापुर में हाल ही में ख़त्म होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर दिफा वी फेंगही ने कहा कि ये अमरीका पर मुनहसर है कि वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को किस तरह बेहतर कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लियोन लू की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इस बात की निशानदेही की है कि चीनी तैयारों और जहाज़ों के दूसरे ममालिक के दरमियान गैर महफूज और गैर पेशा वराना मुकाबलों में ख़तरनाक इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने चाइना हाउस की हैसियत के बारे में तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए इसे एक महकमाना मरबूत टीम के तौर पर बयान किया, जो तमाम मसाइल और ख़ित्तों में हमारी पॉलिसी को मरबूत और नाफिज करेगी। मिस्र, इसराइल और यूरोपीय यूनियन ने गैस के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत मिस्र इसराइली माया कुदरती गैस यूरोप को बरामद करेगा।
मुफाहिमत की इस याददाश्त पर बुध के रोज़ काहिरा में मशरक़ी बहर रोम गैस फोरम में दस्तखत हुए, जिसके तहत तीनों शराकतदारों में गैस में ताउन पर इजाफा होगा। अल जज़ीरा टीवी ने खबर दी है कि रूस ने काहिरा में दस्तखत होने वाले इस मुआहदे पर नाखुशी के इजहार के तौर पर बुध के रोज़ यूरोप के लिए अपनी कुदरती गैस की बरामदात में कमी कर दी है। उर्दू के नामवर अदीब, नक्काद, मुहक्किक, माहिर लिसानियात और अदबी नज़रिया साज प्रोफेसर गोपी चंद नारंग 91 साल की उम्र में अमेरिका के शहर माली कैरोलिना के शहर शार्लेट में 15 जून को इंतकाल कर गए। वो उर्दू अदीब के मुहक्किक ही नहीं बल्कि उर्दू तहजीब के जीता जागता नमूना भी थे। उन्हें सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी कदर की निगाह से देखा जाता था, और वो दीगर ज़बानों के अदबी हलकों में भी उन्हें पजीराई हासिल थी जो उर्दू हलकों में हासिल थी। गोपी चंद नारंग की तसनीफ़ात की तादाद 60 से ज़ायद है, जिनमें उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और हिंदी की तसनीफ़ात भी शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामे मिलिया इस्लामिया के अलावा दीगर मुल्कों में भी उर्दू ज़बान की तदरीसी खिदमत अंजाम दीं। वो 24 ज़बानों की अदबी तरवीज और इशाअत के लिए दिल्ली में कायम साथिया एकेडमी के चेयरमैन भी रहे। उनके इंतकाल से अदबी दुनिया सोगवार है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन फ़र्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को और दुआओं को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को कैमरामैन सैयद असफर इमाम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।